हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कंट्रोल सी कंट्रोल वी। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 साथ में सॉल्व करेंगे। अगर आपने थियरम 1.1 दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का वीडियो नहीं देखा है तो आपके टॉप राइट कॉर्नर में इसका लिंक है, उसे क्लिक करें, उस वीडियो को देख। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ फर्स्ट 135 एंड 225। सो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम अगर आपको याद हो तो उसमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगा के आपको डिविडेंड और डिवाइजर पेयर का कोशेंट और रिमाइंडर निकालना होता है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज 135 and 225. So as 135 is less than 225, so we can write 225 as the dividend and 135 as the divisor, and then we can find the quotient and the remainder. So 225 is equal to 135 into 1 times, ये आप रफ वर्क में करके चेक कर सकते हैं individually. So it will be something like this. So you divide 225 by 135, so it will be 1 times. So we have quotient as 1 and remainder as 90. Again, since remainder is not 0, you will take these two as a dividend divisor pair and then go on forward. So 135 is equal to again 90 times 1 plus remainder हो गया 45, and this is the pair again, and you can see 45 times 2 is 90. So आपको next step में answer आ ही जाएगा. So 90 is equal to 45 times 2 and plus 0. So basically you hit the answer, that is 45 is the HCF. So finally 45 is nothing but the HCF of 135 and 225. Similarly, let's do the second part, which is 38,220 and 196. So obviously बहुत ज़्यादा difference है numbers में. So what it means is you can expect a lot of steps. बहुत सारे steps होंगे. So इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, हर एक step simple ही होता है. Just आपको वो question आराम से बिना mistake किए solve करते रहना है. So since 196 is smaller, तो आपका वो divisor हो जाएगा. So we will write it like this: 38220 is equal to 196 times. Now since ये बहुत बड़ा number है, so let's try to do the rough work. So 196, if you see, times 2 would be 392. So it will be 196. Now this we will carry forward. We know 196 times 10 is 1960, and this is slightly lesser than that. So steps में 196 times 9 करना है. 9 6 54, 9 9 81, 6 9 and then 8, so that will be 17. And whatever आपके difference आएगा, it should be less than 196, otherwise आपने ये question गलत लिया था. ये 0 हो गया. Now 196, if you take 5 times, for example, it should be 980. Let's see, 6 5s 30, 9 5s are 45, 48, and 5 and 9, 980. So it completely divides it. So remainder is 0 and your quotient is 195. So ये तो बहुत ही सिंपल हो गया. इट फेल्ट लाइक कि आपको बहुत सारे स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, बट ये एक ही स्टेप में खत्म हो गया बिकॉज वी हिट द रिमाइंडर 0. व्हाट इट मीन्स इज यहाँ का जो डिवाइजर है 196, दैट इटसेल्फ इज द HCF. सो यू कैन राइट 196 is HCF of 38220 and 196. So what it means is कि अगर दो नंबर है एंड उन दो नंबर में एक नंबर दूसरे नंबर को completely डिवाइड करता है, then that number itself is the HCF. So that's why 196 in one step itself उसका HCF निकल आया. So third part देखते हैं. 867 is greater than 255. So we can write 867 equals 255. Now 4 times if we'll do it, it will be more than 900. So 3 times होगा ये. आप इसको चेक भी कर सकते हैं. So 255 times 3, if we do 765, and then it will be 102. So again, since remainder is not 0, 255 equals 102.
Now you can see that 2 times अगर इसको करेंगे so it will be 204. 3 times से 300 हो जाएगा which will be greater than this, so it will be 102 times 2 plus now 255 में से आपको 204 हटाना है, so that will be 51. Now this will be the pair 102 equals 51, and 51 times 2 is 102 and remainder will be 0, so you have hit the step and 51 is the HCF of 867 and 255. Question number 2. Show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer. So इसमें आपको क्या बताना है कि कोई भी एक ऑड इंटीजर अगर हुआ पॉजिटिव तो उसका फॉर्म ये 3 फॉर्म से मैच करता है जहाँ की q कोई इंटीजर होगा. सो यू कैन क्लियरली सी, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, कि इस टाइप के क्वेश्चंस मॉडल क्वेश्चंस हैं और यहाँ पे आपको हिंट मिल जाता है कि आपको b की वैल्यू क्या लेनी है, एंड यहाँ b 6 हो गया. सो इन क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करते हैं, या तो आप पहले ऐसे भी लिख सकते हैं कि टू प्रूव, या टू प्रूव क्या करना है, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5. सो इस तरह से आपको अपना टारगेट पता चल गया, बहुत क्लीनली आप लिख लो. सो अब कैसे करना है, प्रूफ कैसे देंगे आप. सो यू से लेट, पहले आपको अज्यूम करना है. सो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर. सो ए कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए एंड उसमें आप क्या करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाएंगे. सो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर where r is greater than equal to 0 and less than b, and this will be according to Euclid's division lemma. And here you can write b q r are integers. तो ये सारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं. ये भी एक कंडीशन है ना. आप अब एक और assumption क्या लोगे, let b is equal to 6. Now as soon as you do this assumption, a क्या हो जाएगा, 6q plus r, एंड r का लिमिट क्या हो जाएगा, दैट इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 6. इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स दैट r इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड 5. so that means r ऐसी 6 पॉसिबल वैल्यूज ले सकता है 0 से लेके 5 तक, एंड हम इन ईच केसेस को ऑब्जर्व करेंगे ताकि हम इस चीज़ को प्रूव कर सकें. सो लेट्स डू दैट. इसका मतलब क्या हो गया कि a के क्या क्या फॉर्म्स हैं, इट विल बी ऑफ द फॉर्म 6q और a इज इक्वल टू 6q प्लस 1 और a इज इक्वल टू 6q प्लस 2, a इज इक्वल टू 6q प्लस 3, a इज इक्वल टू 6q प्लस 4, a इज इक्वल टू 6q प्लस 5. Now this you can write is equal to 2 times 3 into q. So this implies it is even. ऐसा क्यों लिखा हमने, ताकि आप क्लियरली दिखा सको कि 2 एक फैक्टर है इस नंबर का. सो 2 को बाहर निकाल लिया ताकि बहुत एविडेंट हो जाए. यहाँ पे भी एविडेंट है बट दिस इज लाइक टू शो, टू मेक इट मोर क्लियर कि हाँ देखो 2 इसका एक फैक्टर है, सो ये एक इवन नंबर हो गया. नाउ 6q प्लस 1 में ऐसा नहीं कर सकते हो आप, सो यहाँ पे करो. सो दिस विल बी 3q प्लस 1. सो दिस इज अगेन, you can say it is even. Again here you can write 2 times 3q plus 2, again this is even. Now what you have to write is कि as we know कि कोई भी एक नंबर अगर ले या तो वो ऑड होगा, अगर ऑड है नहीं है तो वो इवन होगा. इसका रिवर्स क्या होगा, अगर कोई नंबर इवन नहीं है तो क्या होगा, ऑड. सो यू कैन से सिंस a can be either even or odd, therefore 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5 are odd. So what you can write, any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 or 6q plus 5, and then you have proved it. Hence
सो हमारे स्टेप्स क्या थे? हमारे स्टेप्स ये थे कि a को पहले कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर एज्यूम करते हैं, एंड व्हेन वी डू दैट वी आर एबल टू अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, क्योंकि उसकी कंडीशन क्या है कि वो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर पे लगता है। एंड देन बिकॉज वी हैड दी हिंट कि हमें b 6 लेना है, वी विल से दैट लेट b इज इक्वल टू 6। व्हेन यू डू दैट आपके पास मल्टीपल फॉर्म्स आ जाते हैं उस नंबर के, बिकॉज r की वैल्यू कैन रेंज फ्रॉम 0 टू 6 नॉट इंक्लूडेड। सो r की वैल्यूज जितनी भी हैं उसके आप मल्टीपल केसेस बनाएं, एंड व्हेन यू मेक दोज केसेस आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि आपको एक एक केस को आपको एनालाइज करना है। सो व्हेन यू मेड ऑल दीज केसेस, यहाँ आप सब में और लिख सकते हैं, when you make all these cases then आप जिस चीज को प्रूव करना उसको दिमाग में रखते हुए आपने क्या किया, यहाँ पे इसको इवन प्रूव करते गए जो भी रिमेनिंग नंबर्स है। so 6 is clearly factor of 2 is there, similarly a factor of 2 is there, similarly a factor of 2 is there, and then you have proved it even। I'll tell you इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, इवन 4q के फॉर्म में, इवन 8q के फॉर्म में। so doesn't matter आपके पास b कुछ भी हो, आपका जो अप्रोच है टू प्रूव समथिंग इज इवन और ऑड यही रहेगा। Now question number 3, an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. These two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? So जैसा कि मैंने बर्फी वाले क्वेश्चन में आपको थोड़ा समझाया था कि कैसे you have to analyze a question and then decide और deduce कि उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है। सो पहले विजुलाइज करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें क्या बोला है कि एक आर्मी का कंटिजेंट एक ग्रुप है जिसमें 616 मेंबर्स हैं, एंड वो क्या कर रहे हैं, आर्मी का बैंड भी होता है उसमें 32 मेंबर्स हैं, उनके पीछे मार्च कर रहे हैं। एंड इनकी मार्चिंग कंडीशन क्या है कि दोनों सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में होने चाहिए। सो इसको आप पहले विजुअलाइज कीजिए कि यहाँ क्या बोला जा रहा है। सो अगर आपने रिपब्लिक डे परेड देखा है तो आप देखते होंगे कि एक आर्मी का बैंड होता है एंड उसी बैंड के पीछे उसकी आर्मी होती है, एंड देन अगेन बैंड एंड देन आर्मी। सो हर एक स्पेसिफिक जो ग्रुप ऑफ आर्मी है, जो भी पर्टिकुलर डिवीजन के, उनका अपना एक बैंड होता है। ना इसमें कंडीशन क्या दी है कि ये बैंड मेंबर्स यहाँ पे हैं, ये आपके पास 32 हैं, एंड ये जो आर्मी इनके पीछे है ये 616 है, एंड इनको ऐसे मार्च करना है कि इनके नंबर ऑफ कॉलम्स सेम हो। तो दैट मीन्स 1 2 3 4 5, अगर ये 5 कॉलम्स हैं, इनको कॉलम्स बोलते हैं जो एक के पीछे एक लगे हैं, ये अगर ये 5 है बैंड मेंबर्स के, तो पीछे वाले जो भी आर्मी है वो भी सिर्फ 5 कॉलम्स में आनी चाहिए, नॉट लाइक दिस। यहाँ पे देखिए आप अलग अलग कॉलम नंबर्स हैं, बट इस क्वेश्चन की कंडीशन ये है कि ये जो बैंड है जो आर्मी से पहले मार्च कर रही है, उनके जितने भी कॉलम्स हो वो इधर भी उतने ही कॉलम्स होने चाहिए। नाउ व्हाट दिस मीन्स इज कि ये जो 32 मेंबर्स हैं आपको उनको उतने ही कॉलम्स हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास x कॉलम्स हैं जिसमें आप इनको डिवाइड करेंगे, या x की जगह आप ले लीजिए n कॉलम्स में आपको डिवाइड करना है। सो दैट मीन्स कि 32 नंबर्स को आपको इन n कॉलम्स में लगाना है। सिमिलरली 616 जो भी आर्मी मेंबर्स हैं उनको n कॉलम्स में लगाना है। ऐसा आप तब कर सकते हैं जब n 616 का भी फैक्टर हो और 32 का भी फैक्टर हो, करेक्ट। दैट मीन्स n इज नथिंग बट अ फैक्टर ऑफ बोथ 616 एंड 32। नाउ इसके बाद एक और कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि वो जो n है वो मैक्सिमम होना चाहिए। दैट मीन्स n जो कि एक कॉमन फैक्टर है 32 और 16 का, वो हाईएस्ट होना चाहिए। मैक्सिमम यानी हाईएस्ट। दैट मीन्स आपको क्या फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो यू कैन राइट लेट n बी नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे मार्च। सो n नंबर ऑफ कॉलम्स हो गया, सो n इज इक्वल टू HCF ऑफ 616 एंड 32। सो n क्या हो गया, इनका HCF हो गया। ये निकालते ही आपको कुछ मार्क जो पार्शियल मार्क मिल जाएंगे, बिकॉज आपने क्रैक कर लिया कि n क्या है, नथिंग बट HCF ऑफ 616 एंड 32। अब आपको क्या करना है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम लगाना है इन दो नंबर्स पे, एंड दिस इज हाउ यू कैन डू इट। 616 इज इक्वल टू 32 टाइम्स। सो रफ वर्क साइड में करते हैं टू फाइंड दिस आउट। सो 32 टाइम्स 2 इज 64, तो वन टाइम ही करना पड़ेगा। सो इट विल बी 9 29 296। सो 32 times 10 is 320. This number is slightly less than 320, so I think 9 times होना चाहिए। So let's see, 9 2s 18, 9 3s are 27, so 28 16, that means 8 and 8 and cancel, so 8 हो गया remainder। So 32 times 19 and remainder क्या हो गया 8। Again since remainder is not 0, आपको step repeat करना है in 32 and 8। So that means 32 is equal to 8 times, and this you know
8 times 4 is 32 and remainder क्या हो गया 0. So you have hit the step where you will get the HCF and 8 is nothing but the HCF. So you will write 8 is equal to HCF of 616 and 32. Therefore n is equal to 8. So you have found out that n is equal to 8 and generally जब भी हमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं इस टाइप से जो हमने आंसर फाइंड आउट किए हैं उसको इस तरह से बॉक्स में लिख दो तो काफ़ी क्लियर हो जाता है इवन आपके जो चेक कर रहे हैं बुक्स कि इसको ये यहाँ पे आंसर मिल गया एंड देन इन ऐसे क्वेश्चंस को आई वुड रेकमेंड कि ऐसे ख़त्म ना करें. आपको एक और लाइन लिखनी चाहिए यहाँ पे कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे मार्च शुड बी 8. सो आपको ये पूरी लाइन लिखनी है बिकॉज आपको क्वेश्चन जो है एक सेंटेंस के फॉर्म में पूछा गया तो आपका आंसर भी वैसे ही होना चाहिए. सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी 8. दैट्स इट एंड दैट्स योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 4 अगेन वो मॉडल क्वेश्चन पे बेस्ड है. Use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. तो आपको क्या बताना है कि कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है अगर आप उसका स्क्वायर लेंगे तो उसका जो फॉर्म है वो इस फॉर्म में होगा 3m या 3m plus 1. और आपको हिंट क्या दिया है लेट x be any positive integer then it is of the form 3q plus 1 3q plus 2. Now square each of these and rewrite them to find that they are of the form 3m and 3m plus 1. सो थोड़ा सा इन्वॉल्व क्वेश्चन है बट इसमें फंडामेंटल्स वही हैं. तो आपको प्रूफ क्या करना है टू प्रूव स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1. ये दो फॉर्म्स में हो सकता है. सो आप क्या करोगे यहाँ पे इन द प्रूफ लेट a be any positive integer. यहाँ पे x नहीं ले रहा हूँ मैं because we have been following this convention कि a को भी positive integer लेते हैं. So let's continue that. So therefore a is equal to bq plus r where जो b है q है r है they belong to integers. They are all integers and r की constraints क्या है कि r will be less than b and greater than equal to 0. एंड ये आप यूक्लिड डिवीजन लेमा की वजह से लिख पा रहे हैं. सो यू विल राइट दैट ऑन द राइट हैंड साइड. नाउ अब आपको क्या एज्यूम करना है ऑलरेडी आपको हिंट दिया गया है कि यहाँ पे b को 3 के फॉर्म में लेना है. सो लेट b इज इक्वल टू 3. नाउ दिस इम्प्लाइज r इज इक्वल टू 0 1 एंड 2 बिकॉज ऑफ दिस राइट. सो इसकी वजह से आपको r को 0 1 एंड 2 लेना है. नाउ आपके पास तीन केसेस बनेंगे. ए के फॉर्म तीन टाइप्स के होंगे. तो आप यहाँ लिख दीजिए दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू पहला हो गया 3q और 3q plus 1 और 3q plus 2. तो ये तीन टाइप्स के ए के फॉर्म हो गए. सो अब इनको वन बाय वन हम डील करेंगे. नाउ केस 1 क्या है a इज इक्वल टू 3q. नाउ व्हेन a इज इक्वल टू 3q a स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो आप 3q होल स्क्वायर राइट. नाउ 3q होल स्क्वायर क्या हुआ 9q स्क्वायर. इसमें से आप क्या करो बिकॉज आपको 3m और 3m plus 1 के फॉर्म में किसी ना किसी तरह दिखाना है कि स्क्वायर नंबर होगा. सो इसमें आपको समझ में आ रहा है कि 3q के फॉर्म में दिखाया जा सकता है कैसे और रादर 3m के फॉर्म में. सो कैसे आप 3 बाहर ले लो एंड वॉट एवर रिमेन्स आप उसको ब्रैकेट में लिख दो. सो 3q स्क्वायर हो गया. सो वॉट इट मीन्स इज कि a स्क्वायर ऐसा नंबर है जिसमें उसका फैक्टर एक 3 है एंड वॉट एवर एक रिमेनिंग नंबर है आप उसको m बोल दो. सो यू टर्म ऑल ऑफ दिस एज m. सो दिस इज नथिंग बट 3 इज इक्वल टू m एंड यू विल राइट वेयर m इज इक्वल टू 3q square. So where m is equal to 3q square and it is an integer. Now ये जो सेकेंड लाइन में लिखी है बहुत ही सटल है बट इम्पॉर्टेंट है. क्यों आप किसी भी नंबर को लेके उसको m बोल दोगे तो आपका प्रूफ पूरा नहीं होगा. क्यों क्योंकि आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस फॉर्म में आप लिखोगे तो m भी कोई एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए. सो यहाँ पे आप बोल सकते हो इट इज एन पॉजिटिव इंटीजर. ऐसा क्यों हुआ अब इसको डिटेल करने की जरूरत नहीं है. आई डोंट थिंक इतना एक्सपेक्ट किया जाएगा आपसे बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूं 3 एक इंटीजर है और q एक इंटीजर है. तो और किसी भी इंटीजर का स्क्वायर भी एक इंटीजर होता है. ये आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा है. एंड किसी भी इंटीजर्स का प्रोडक्ट जो होता है वो इंटीजर होता है. सो 3q स्क्वायर इन अ होल इंटीजर हो गया. सो लेट्स मूव ऑन. सेकेंड केस हम लोग को क्या करना है a इज इक्वल टू 3q plus 1 लगाना है. सो यहाँ पे सिमिलरली पिछले स्टेप की तरह 3q plus 1 का स्क्वायर लेंगे.
सो यहाँ पे आपको क्या हो गया, a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना आपको. सो विच इज़ व्हाट, a स्क्वायर दैट मीन्स 3q द होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज़ 1 स्क्वायर प्लस 2ab 2 टाइम्स 3q टाइम्स 1. सो यहाँ पे आप लिख सकते हो रीजन, दैट इज a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. इस तरह से आप लिखोगे तो टीचर को पता है कि हाँ आपने किसी सामने वाले या पीछे वाले बंदे का टीपा नहीं है, आपको पता है कि किस तरह से आया है. सो दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस दिस विल बी व्हाट 6q. नाउ आपको क्लियरली पता है कि आप यहाँ पे इसको 3m के फॉर्म में नहीं लिख सकते, राइट, बिकॉज 3 कॉमन नहीं निकल रहा है. बट इसको आप 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं बिकॉज एक m अलग से खाली पड़ा है. सो आप क्या करो, जो नंबर्स हैं उनको ग्रुप करो. सो दैट मीन्स 9q स्क्वायर प्लस 6q ऐसे हो गया प्लस 1 हो गया. नाउ यू ट्राई टू टेक आउट 3 हियर. सो जब आप 3 कॉमन लेंगे, सो 9q स्क्वायर था अंदर तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर, और 6q था तो हो जाएगा 2q, एंड यहाँ पे हो जाएगा 1. सो दिस इज अगेन ऑफ द फॉर्म 3m प्लस 1, राइट, बिकॉज इस पूरी चीज़ को हम m ले लेते हैं. सो वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q एंड इट इज अ इंटीजर. इंटीजर आपको समझ में आ गया क्यों होगा. आपके क्वेश्चन में ये कंडीशन नहीं कि m को पॉजिटिव होना चाहिए. यहाँ पे इट इज़ एन इंटीजर, पॉजिटिव नहीं बोल सकते हो बिकॉज 2q कैन बी नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज q. सो अगेन आपको इतना पता है कि ये जो पूरा फॉर्म है ये एक इंटीजर होगा बिकॉज दिस इज एन इंटीजर, दिस इज एन इंटीजर, एंड व्हेन यू ऐड टू इंटीजर्स यू विल गेट एन इंटीजर. ये आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा है प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स में. सो 3m प्लस 1 के फॉर्म में a स्क्वायर आ गया. सो दैट मीन्स दो फॉर्म तो आपने क्लियर कर दिया कि 3m या 3m प्लस 1 फॉर्म में है. नो लास्ट केस क्या है, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2. ये केस एग्जैक्टली सिमिलर है पिछले केस से बिकॉज यहाँ पे भी आपको क्या करना है, a प्लस बी का स्क्वायर वाला फॉर्म लगाना है, एंड दिस विल बी इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 टाइम्स 2 इज 6, 2 टाइम्स 12, सो इट विल बी 12q. एंड यहाँ पे आप लिख सकते हैं अगेन a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. सो ये वाला फॉर्म आपने लगा दिया. एंड अब आपको क्या करना है, 3m प्लस 1 वाला फॉर्म आना है. यहाँ पे 1 आपको दिख नहीं रहा है बट इट इज़ हिडन देयर इन 4. सो आप इस टर्म को रीअरेंज करो, इसको आप लिखो 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 एंड देन आप अलग से 1 लिख दो. सो व्हेन यू डू दैट आपके अंदर 3 आ गया, वहाँ 1 रह गया. एंड इसकी वजह से एक और हेल्प मिल गई आपको कि आप 3 एक कॉमन ले सकते. सो मैंने 2 स्टेप्स दिमाग में नहीं लगाया, मैंने सिंपल क्या किया, मुझे 1 निकालना था किसी तरह, मैंने जैसे ही 1 निकाला मुझे 3 भी मिल गया. सो व्हेन यू टेक अ 3 कॉमन आउट ऑफ दिस, सो यू विल गेट 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 एंड 1 बाहर है, एंड दिस होल थिंग इज नाउ m. So is equal to 3m plus 1 where m is equal to 3q square plus 4q plus 1 and it is an integer. So इस तरह से आपने क्या प्रूफ कर दिया कि ये तीनों जो स्क्वायर फॉर्म्स हैं ये 3m या 3m plus 1 के फॉर्म में है. So now you can write square of any positive number is of the form 3m or 3m plus 1, hence proved. सो इस तरफ से आपने प्रूफ ले लिया. सो बेसिकली आपने किया क्या, ए को नॉर्मली बी क्यू प्लस आर फॉर्म में लिया, बी को 3 लिया, आपको हिंट दिया था. बट मैं आपको और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वाले वीडियो में, तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस आ जाएगी कि बी को क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, कितने सिनेरियोज हो सकते हैं. बट इन एनी केस वंस यू फिगर आउट कि बी क्या होगा आपके लिए ईजी हो जाता है. आपको बस ये जितने भी केसेस आ रहे हैं इन केसेस को इंडिविजुअली डील करना है. ना आपको ये डाउट आ सकता है जो कि वैलिड डाउट है बट मैं इसको क्लियर करता हूँ कि यहाँ पे आपने m ले लिया है 3q स्क्वायर, फिर बहुत ही कन्वीनियंटली आसानी से आपने यहाँ पे m को जो है 3q स्क्वायर प्लस 2q ले लिया, और बहुत ही कन्वीनियंटली फिर आपने m को बदल के 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 कर दिया. ऐसे कैसे पॉसिबल है, एक ही क्वेश्चन में m की 3 वैल्यूज़ कैसे होंगे. सो आपको यहाँ ये समझना है कि ये 3 जो केसेस हैं ये तीनों केसेस डिफरेंट है और ये तीनों केसेस एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते. इसलिए m की ये जो तीनों वैल्यू है एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, इसलिए ये तीनों को कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रही. क्यों, क्योंकि एक नंबर जो a है वो तीनों में से किसी एक फॉर्म में रह सकता है, तीनों फॉर्म में एक साथ नहीं रह सकता है. सो इफ इट वॉज 3q प्लस 2 देट m की वैल्यू इतनी होगी. 3q प्लस 1 फॉर्म में रहा अगर a तो उसका स्क्वायर का फॉर्म 3m प्लस 1 m विथ 3q स्क्वायर प्लस 2q होगा. दैट मीन्स m की वैल्यू इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन विच केस यू आर टेकिंग.
सो m की 3 डिफरेंट वैल्यूज नहीं है, सो देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट हियर. यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m plus 1 और 9m plus 8. तो इसमें आपको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m plus 1 और 9m plus 8. नाउ इस क्वेश्चन को एक्सरसाइज में इसलिए दिया गया है कि आपको थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ना है वो मॉडल क्वेश्चन से. पिछली बार आपने कहा था कि आपको स्क्वायर के बारे में बताया जा रहा था वहाँ पे, एंड यहाँ पे आपसे अब क्यूब का क्वेश्चन पूछा जा रहा है. बट आपको एक हिंट दिया है कि यहाँ पे 9 है, बट यू डोंट हैव टू टेक b इज इक्वल टू 9 इन दिस केस. इसके दो रीजन है. दो रीजन ये है कि अगर आप b इज इक्वल टू 9 लेंगे तो आपके पास 9 केसेस आएंगे, एंड इंडिविजुअली जो आपके पास केसेस आएंगे आप उन सबको क्यूब करेंगे एंड देन फिर उसको सॉल्व करेंगे, उसकी ज़रूरत नहीं. सो विल स्टार्ट विथ सिंपल. हम क्या करेंगे? हम 3 से करेंगे स्टार्ट. क्यों? क्योंकि वी नो दैट जब भी हम किसी नंबर का क्यूब लेते हैं तो उसमें क्यूब की टर्म आती है एंड देन उसमें स्क्वायर का टर्म भी आता है, एंड स्क्वायर में 9 हो सकता है. सो आई नो एक बार जब आप सॉल्व करेंगे तो बाद में आपको ये बैकवर्ड इंसाइट आएगा कि हाँ अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी हेल्प कर रहा हूँ. सो विल स्टार्ट विद समथिंग सिंपल. जनरली आपको अगर ऐसा बी दिखे यहाँ पे जो कि इज अ परफेक्ट स्क्वायर लाइक 9 है यहाँ पे या 4 हुआ, सो आप पहले ट्राई कीजिए कि यू स्टार्ट विद समथिंग सिंपलर उसके स्क्वायर रूट से. सो वी विल ट्राई टू टेक b इज इक्वल टू 3. सो लेट्स बिगिन. लेट्स से लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर. देन आप क्या लिख सकते हो? a इज इक्वल टू bq plus r where r is greater than equal to 0 and less than b, and this is valid for all. ये सिंबल होता है for all का. for all b q and r belonging to integer, मतलब this is valid for all b q r being integers, and this is from Euclid's division lemma. इन केस आपको ये टर्मिनोलॉजीज या ये सिंबल्स डिफिकल्ट लग रहे हैं, सो आप फुल सेंटेंस के फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं. बट इन ऑर्डर टू सेव टाइम आप इन सिंबल्स को अगर आप अभी से समझ लेंगे आपको हायर क्लासेस में भी आएंगी, सो इट्स बेटर. सो दिस इज फॉर ऑल. नाउ लेट b इज इक्वल टू 3. हम 9 नहीं ले रहे एज आई सेड. दिस इम्प्लाइज व्हाट? r इज इक्वल टू 0 1 2 3 विल नॉट बी इंक्लूडेड. सो आपके पास 3 केसेस बनेंगे यहाँ पे. सो व्हाट दिस इम्प्लाइज इज a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2. सो पहला केस क्या होगा? जब a इज इक्वल टू 3q है, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, उसी फॉर्मेट में जाएंगे. सो दिस इज द फर्स्ट केस. दैट मीन्स a क्यूब क्या होगा? 3q द होल क्यूब, विच विल बी नथिंग बट 27q क्यूब. इसमें आप 9 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? 3q क्यूब, एंड दिस इज ऑफ द फॉर्म 9m where m is equal to 3q cube. Now second case, a is equal to what? 3q plus 1. So a cube क्या हो जाएगा? 3q plus 1 the whole cube, which will be equal to a cube plus b cube plus 3ab square. So 3 into a into b square plus 3 a square b into 1. So इसका आप रीज़न लिख सकते हैं कि a plus b the whole cube is equal to a cube plus b cube plus 3ab square plus 3a square b. So this is your expansion. So this will be equal to 27q cube plus यहाँ पे हो जाएगा 9q प्लस यहाँ पे हो जाएगा 27q स्क्वायर प्लस 1. आपको पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि 9m प्लस 1 वाला फॉर्म यहाँ पे बन सकता है, बिकॉज 1 एक क्लियरली बाहर दिख रहा है, एंड यहाँ पे 9 इज़ अ कॉमन फैक्टर हियर. सो हम इसको वैसे ही कन्वर्ट करते हैं. सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको डायरेक्टली दिखता रहे. सो a क्यूब क्या हो जाएगा यहाँ पे? अगर 9 कॉमन ले, 3q क्यूब प्लस q plus 3q square plus 1. So this is nothing but 9m plus 1 where m equals 3q cube plus 3q square plus q. So I hope this is clear. अब हमें थर्ड केस लेना है. थर्ड केस में क्या है? a is of the form 3q plus 2. सो पिछले स्टेप की तरह
a क्यूब हम निकालेंगे 3 क्यूब प्लस 2 द होल क्यूब विच इज़ नथिंग बट 27 क्यूब 2 क्यूब हो जाएगा 8 एंड देन 3a² b ले लीजिए पहले आप, सो 3 टाइम्स a² क्या होगा 9q² इंटू 2 प्लस 3ab² ले लीजिए, सो 3 इंटू 3q इंटू 4 एंड अगेन यहाँ पे आप रीजनिंग लिख सकते हैं कि a प्लस बी द होल क्यूब इज एक्सपांडेड लाइक a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, राइट। अगेन अब आपको क्या करना है, 9m प्लस 8 एक फॉर्म है, सो 8 को आप अलग लिख लीजिए एंड बाकी जगहों में से 9 कॉमन लिख के आप लिख लीजिए। सो इफ़ यू टेक 9 कॉमन फर्स्ट टर्म से तो क्या बचेगा 3q सेकेंड टर्म आप में अगर 9 निकालेंगे तो क्या बचेगा 6q² प्लस यहाँ पे 3 इंटू 3 इज़ 9 बचेगा फिर 4, सो 4q और ये हो गया 8। मैंने एक स्टेप स्किप किया है, आप चाहें तो एक स्टेप लिख के फिर 9 कॉमन निकाल सकते हैं। दिस विल बी 9m प्लस 8 वेयर m इक्वल्स जो भी ब्रैकेट वाला टर्म है 3q³ प्लस 6² प्लस 4q एंड hence we can say cube of any positive integer is of the form या तो 9m plus 1 और 9m plus 8 and you can say proved। रीज़न आपका लिखने का ये है कि आपने सारे केसेस को यहाँ पे चेक किया एंड सारे केसेस को एग्जॉस्ट कर लिया, इसके अलावा और कोई केस पॉसिबल नहीं है एंड हेंस यू कैन पक्के से कि ये 3 के अलावा और कोई फॉर्म नहीं होगा क्यूब का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको बाय एनी केस कुछ क्वेश्चंस में ऐसा लगा कि मैंने बहुत फास्ट पढ़ा दिया या कुछ क्वेश्चंस में ऐसा लगा कि आपको क्लियरली समझ में नहीं आया, यू नीड मोर अंडरस्टैंडिंग, सो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वाले वीडियो में जाइए, उसमें आपको सिमिलर क्वेश्चंस मिलेंगे बट दे विल बी स्लाइटली डिफरेंट, सो वी विल बी एक्सप्लोरिंग मोर क्वेश्चंस लाइक दीज। अगर उसमें से भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में बेहिचक लिखिए कि मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं एंड देन आपके डाउट्स को कलेक्ट करके या तो मैं एक नया वीडियो बना दूंगा या तो फिर कमेंट्स में ही आपके डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ये छोटे छोटे स्टेप्स के साथ आप हमें ग्रो करने के लिए हेल्प करेंगे एंड इन रिटर्न हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियोस बनाएंगे और सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो बनाएंगे। Until then, bye bye.